Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ritu Agarwal and today's video is for every student of CS fraternity who is in search of their practical training. So without any delay, let's get into the video. As we all know, now exams are over for CS executive and CS professional students and there are different plans of everyone and plans definitely hone bhi chahiye as we all need a break. But there are many students who are in search of their internship. So I just thought to share my interview experiences with some frequently asked questions by the interviewer, which might help you in getting a good training opportunity. So I'm starting with the same. There are some basic questions such as tell me about yourself, your weakness, your strength. These are type of questions which you will be definitely going to face if you are going for an interview. But apart from these questions, what questions can be asked by the interviewer, we'll discuss on that part. Generally, there will be two category of students amongst who all are watching the video. Category 1, who have not yet started their practical training. मतलब जिनके पास अभी कोई भी practical experience नहीं है, सिर्फ हमने books पढ़ी है, we are executive cleared और professional cleared. And category 2 can be जिन्होंने अपनी practical training already start कर दी है and they are planning to change the same. There will be multiple reasons of changing an internship, like for better exposure, or it can be anything else. But the common thing between both the category of students is like for getting internship, both the categories have to go through the process of interview. So apart from their resume, nothing will keeps you different. Reason being, in the resumes of students who are planning to change their internship, there is a brief list of assignments or achievements which they have worked upon during their training, and in the resumes of students who are freshly applying, there will be basic details of their qualifications, their hobbies and any other things. So जो बेसिक डिफरेंस है दोनों रेज्यूमे में, दैट इज जो ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं उसमें होगा आपने क्या क्या किया है, आपने जो असाइनमेंट पे काम किया है, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है थोड़ा, एंड जो फ्रेशली अप्लाई कर रहे हैं उनके पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. So I'm starting with a few tips for the ones who are planning to change their internship. Thereafter, we'll go for the common things which will suit both the category of students. Do revise and recall all the assignments which you have worked upon. Reason being, like many questions, there will be on the basis of your experience, or one can say major questions will be there on the basis of your experience. So आपको जितने भी असाइनमेंट्स पे आपने काम किया है, आपको सारे असाइनमेंट्स रिवाइज करके जाने हैं, सेक्शंस like form numbers, procedure, everything. Suppose take an example. In your resume, you have mentioned like you have successfully incorporated a public company or a private company. In that case, what expected questions can be? First, it can be like, tell me the procedure of incorporation. Second, it can be what all documents require for incorporating a company. What are the post-incorporation compliances? Fourth, it can be like how many days generally ROC takes to approve that incorporation forms. Like and many other technical questions can be. यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आप कोई रिज्यूमे में असाइनमेंट बताते हो पर्टिकुलरली. सो द कंक्लूजन इज मेक श्योर आप कोई भी असाइनमेंट जो बता रहे हो उसके बारे में आपको एवरी सिंगल डिटेल पता हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली वर्क किया है उसके ऊपर. सो इट इज नेसेसरी कि आप उस बारे में अवेयर हो. एंड इफ यू हैव वर्कड अपॉन एनी असाइनमेंट लाइक ऑन विच यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अपॉन कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं फंबल कर सकती हूँ यहाँ पे. सो अगर ऐसा कुछ भी असाइनमेंट है ना, तो आई वुड सजेस्ट रिमूव दिस फ्रॉम योर रिज्यूमे, क्योंकि इंटरव्यू में फंबल करने से बेटर है आप वो एक पर्टिकुलर असाइनमेंट को अपने रिज्यूमे में से निकाल दो. एंड इट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कैन बी लाइक आप उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के बारे में और पढ़ो, आप सर्च करो, यू कैन गूगल इट, क्योंकि आपके पास थोड़ा आइडिया है. आप सिर्फ अगर थोड़ा भी गूगल करोगे ना, सो आपको पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप वापस स्क्रू अप नहीं करोगे. सो दीज आर दी टू ऑप्शंस. अल्टीमेट चॉइस इज योर्स. आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, रेज्यूमे में से रिमूव करना है या फिर उसके ऊपर और थोड़े से एफर्ट्स डाल के क्लैरिटी लानी है. सेकेंड थिंग, यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द क्वेश्चन दैट इज व्हाई यू आर चेंजिंग योर इंटर्नशिप. ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर आप चेंज कर रहे हो ना, मतलब एवरी सिंगल रिक्रूटर विल आस्क यू. मैंने खुद ने अपनी इंटर्नशिप चेंज की तो मुझे ऑलमोस्ट एवरी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया, लाइक व्हाई आर यू चेंजिंग योर इंटर्नशिप, मतलब व्हाई आर यू चेंजिंग, लाइक एवरी सिंगल प्लेस आई फेस दिस क्वेश्चन. सो अगर आप इंटर्नशिप चेंज करने का सोच रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो. नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द फ्यू थिंग्स विच एवरी स्टूडेंट शुड बी नोइंग, इधर यू आर प्लानिंग टू चेंज योर इंटर्नशिप और यू आर फ्रेशली अप्लाइंग. Okay, so first question can be, what are the recent amendments in Companies Act?
ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा। लाइक आप इंटर्नशिप के लिए दे रहे हो या फिर जॉब के लिए दे रहे हो, यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चन। सो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं वो आपको पता होने चाहिए। रीजन बीइंग कंपनीज एक्ट इज आवर कोर एरिया एंड हमें पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड अगर नहीं आता तो दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज एट द एंड वी आर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप ओनली, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको बेसिक चीजें पता हो कंपनीज एक्ट के बारे में। एंड ये अमेंडमेंट्स तो आपको पता हो, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। सो 5-6 अमेंडमेंट्स आप देख लो कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं रिसेंटली। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है ना तो यू कैन आंसर अपॉन इट, आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा यहाँ पे। अदर क्वेश्चन कैन बी हाउ यू केम टू नो अबाउट आवर वैकेंसी और ऑन विच प्लेटफॉर्म यू हैव फाइंड आवर वैकेंसी। ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब जहाँ पे मैं लिटरली खुद फंस गई थी। यहाँ पे ना आई हैड अप्लाइड इन अ फर्म जहाँ पे मुझे इन एन ऑनगोइंग इंटरव्यू उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि लाइक आपको हमारी वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला। एंड एट दैट टाइम आई वॉज ब्लैंक क्योंकि आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एंड आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड और मैंने किसी से सुना भी नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। बट मेरे साथ ये हुआ, मुझे उन्होंने जब ये क्वेश्चन किया ना तो मुझे ऐसा हो गया मैं क्या आंसर करूं, क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे होते इंटर्नशिप के लिए सो हमें कहीं भी वैकेंसी दिखती हो, जनरली किसी फ्रेंड ने बताई हो या फिर लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी वी यूज टू शेयर आवर रिज्यूमेज। सो मैं इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी एंड इवन मुझे पता भी नहीं था मुझे उनकी वैकेंसी कहाँ से पता चली। सो व्हाट आई टोल्ड इज कि आई हैव टू लाइक मुझे आपकी वैकेंसी के बारे में पता चला फ्रॉम वन ऑफ द व्हाट्सएप जॉब शेयरिंग ग्रुप एंड दे बी लाइक ओके। सो आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपने उनकी वैकेंसी कहाँ देखी या फिर आपको उनका ईमेल आईडी कहाँ से मिला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, दैट इज प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आपको आएगा क्योंकि जनरली आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएस 2 ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप प्रैक्टिस में चाहते हो या आप एम्प्लॉयमेंट में चाहते हो। बट आप इस क्वेश्चन का जो भी आंसर करो ना, मेक श्योर आप उसको जस्टिफाई कर सको, क्योंकि जैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ट्रिगर होगा आपके लिए, वाई एम्प्लॉयमेंट और वाई प्रैक्टिस, लाइक वाई यू आर गोइंग इनटू एम्प्लॉयमेंट और वाई यू आर गोइंग इनटू द प्रैक्टिस। सो आप जो भी आंसर करोगे, इधर प्रैक्टिस और इधर एम्प्लॉयमेंट, आप ऐसा आंसर करना कि आप उसको जस्टिफाई कर सको कि ऑन द बेसिस ऑफ योर सिचुएशन, कि अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो वाई यू आर गोइंग इन एन एम्प्लॉयमेंट एंड वाई नॉट प्रैक्टिस, and if you are going in a practice, so why practice, why not employment. Other question can be which is your favorite section of Companies Act 2013. ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जगह फेस करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन सिलेक्ट कर लो, सच एज 185, 186, 188 या फिर सीएसआर के रिलेटेड, एनुअल रिटर्न के रिलेटेड, कोई भी एक अच्छा सा सेक्शन जिसपे आप प्रिपेयर कर लो। बट मेक श्योर जो भी आप सेक्शन सिलेक्ट करो वो सेक्शन में आप स्क्रू अप मत करना। यू शुड बी नोइंग एवरी सिंगल डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको चॉइस दी जा रही है। इंटरव्यूअर इज गोइंग टू गिव यू अ चॉइस कि आप अपनी चॉइस का कोई भी एक सेक्शन बताओ। सो अगर आप अपना फेवरेट सेक्शन बता रहे हो, अपनी चॉइस से आप बता रहे हो, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप वहां पे स्क्रू अप करो, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस तो एक्सेप्टेबल है कि आप स्क्रू अप कर सकते हो, अनप्रेडिक्टेबल होंगे वो क्वेश्चंस। बट अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे तो यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर इट एंड आपने एक सेक्शन सिलेक्ट किया है, सो यहाँ पे स्क्रू अप मत करना। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कोई भी सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ बिफोर लैंडिंग इन एन इंटरव्यू। अदर क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस पूछी जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, 10,000, 15,000, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे, आपको कितना मिलेगा इन योर इंटर्नशिप। सो मेक श्योर आप यहाँ पे जो भी आंसर करो वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, क्योंकि व्हाट हैपेंस ना, इन मेट्रो सिटीज यू विल गेट हायर स्टाइपेंड एज कम्पेयर टू दैट अदर सिटीज। सो जो भी कोट करो आप, लाइक 10 to 15 के या फिर 15 to 20 के, मेक श्योर वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, जो कि ज्यादा हाई भी नहीं हो और ज्यादा लो भी नहीं हो। सो अकॉर्डिंगली आप कोट करो वहां पे, क्योंकि इट कैन बी अ रीजन कि आपको वो सिलेक्ट ना करे। अगर आप बहुत ज्यादा हाई कोट करते हो या फिर बहुत ज्यादा अगर लो कोट करते हो तो इट इज आवर लॉस। क्या पता वो 15,000 देना चाहते हो और हम 10,000 कोट कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी आप इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कोट करो। बिफोर लैंडिंग इन इंटरव्यू आप देखो कि वो पर्टिकुलर सिटी के अंदर कितना स्टाइपेंड मिलता है, 1-2 फ्रेंड से पूछो, सो अकॉर्डिंगली कोट करो वहां पे। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन बी वाई यू ऑप्टेड सीएस एज अ प्रोफेशन, वाई नॉट सीए, सीडब्ल्यूए, सीएमए और एनी अदर प्रोफेशन, वाई सीएस, लाइक वाई यू सिलेक्टेड सीएस एज अ प्रोफेशन। सो यहाँ पे जो आप आंसर करोगे ना, मेक श्योर वो आपकी जेन्युइननेस जस्टिफाई करे।
मतलब मेक श्योर कि आपका आंसर यहाँ पे जेन्यून हो, क्योंकि देर आर मल्टीपल रीजन आपने CSQ सेलेक्ट किया होगा। सो आप उसको बताओ वहां पे। ये जब क्वेश्चन मेरे पास आता है, व्हाट आई आंसर इज कि मुझे नंबर्स में खेलना नहीं पसंद, आई हेट नंबर्स, आई रियली हेट बैलेंस शीट्स, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे समझ ही नहीं आती है बैलेंस शीट, एंड आई एंजॉयड रीडिंग लॉ। सो इसलिए मैंने CS चूज किया अपार्ट फ्रॉम दैट CA, CW और एनी अदर प्रोफेशन। सो यहाँ पे आप और भी अपना कुछ आंसर फ्रेम कर सकते हो जो आपकी जेन्युइननेस को जस्टिफाई करे। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैन बी what all is statutory registers a company needs to maintain। मतलब कौन कौन से statutory registers है जो एक कंपनी को मैंडेटरीली मेंटेन करने हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर्स है, सच एज रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर, रजिस्टर ऑफ चार्ज होल्डर्स, मतलब बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। सो मेक श्योर कि आप इंटरव्यू देने जाने के पहले जो लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, एंड 4 to 5 जो कॉमन रजिस्टर्स है वो आपको पता होने चाहिए कि कंपनी के अंदर ये मेंटेन किए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द वंस हु आर परस्यूइंग देयर LLB अलोंग विद CS। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो एंड आप LLB कर रहे हो CS के साथ, तो आपको एक क्वेश्चन फॉर श्योर वेट करना पड़ेगा, व्हाई LLB एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर LLB विथ योर CS। सो मेक श्योर आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो, एंड इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर जो भी हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। एट लास्ट देयर आर फ्यू सेक्शंस विच यू शुड रिवाइज बिफोर लैंडिंग इन एन इंटरव्यू। यहाँ पे सबसे पहले मैं 3 सेक्शंस को एक ही पॉइंट में कवर करूंगी, बिकॉज ये तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस के लगते हैं मुझे। सेक्शन 185, 186, 188 एंड 188 के अंदर भी मोर पर्टिकुलरली दैट लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो ये 3 सेक्शंस आपको एकदम थॉरली पढ़ने ही है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। आई डोंट नो, ये 3 क्वेश्चंस लाइक कोर ऑफ द कंपनीज एक्ट है। इन तीनों में से आपको एक सेक्शन तो फेस करना ही है इंटरव्यू के अंदर। दिस इज मतलब डैम श्योर चीज है, ये कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है इसके ऊपर। यू हैव टू रीड दीज 3 सेक्शंस थॉरली। सेकेंड, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एनुअल जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, such as their frequency, their quorum, and the sections related to the annual general meeting and board meeting, or every single detail. Without giving any second thought, आपको ये annual general meeting and board meeting के provisions पढ़ के जाने and आपको पता होने चाहिए। Third, section 204 and 205. Because ये दोनों sections are related to our company secretaries only, that is company secretary के बारे में, secretarial audit के बारे में, ये दोनों sections में, तो आपको ये दोनों सेक्शंस पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हु विल सर्टिफाई द एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न कौन सर्टिफाई करता है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी? डायरेक्टर, लाइक कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई प्रोफेशनल सर्टिफाई करता है। सो ये तीनों केसेस में, दैट इज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड लिस्टेड कंपनी, आपको पता होने चाहिए कि एनुअल रिटर्न कौन सर्टिफाई करेगा। फिफ्थ क्वेश्चन कैन बी ऑन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, दैट इज व्हाट इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1, व्हाट इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, लाइक विच वन इज रिलेटेड टू AGM और विच वन इज रिलेटेड टू दैट बोर्ड मीटिंग। सो आपको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, एंड आपको इतनी चीजें, इतने सेक्शंस जो मैंने बताए हैं वो तो आपको रीड करके ही जाना है। उसके अलावा भी अगर आप कोई सेक्शन कवर करना चाहते हो विच यू थॉट इज इम्पोर्टेंट, सो वो भी आप कवर करो, एंड अगर आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है तो शेयर विद अस एज वेल इन कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू रीड दैट एज वेल। सो आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि एनी हाउ वो चीज आपको बेनिफिट ही देगी। एंड इफ यू आर अप्लाइंग इन अ लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी कोई भी फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज का काम आता है या फिर लिस्टेड कंपनीज के रिगार्डिंग कंप्लायंसेस पूरे कंप्लाई किए जाते हैं, तो मेक श्योर आप LODR भी पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर आप लिस्टेड कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या फिर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के सेबी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो दे में एक्सपेक्ट कि आपको LODR का, ICDR का बेसिक आइडिया हो। सो आप LODR एंड ICDR का बेसिक रिवीजन करके जाओ। एंड LODR में भी मोस्ट प्रोबेबली क्या पूछते हैं वो लोग, दैट इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, क्वार्टरली बेस्ड कंप्लायंसेस एंड एनुअल कंप्लायंसेस। तो आपको ये कंप्लायंसेस की जो एक रैंडम लिस्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच आई थॉट इज इम्पोर्टेंट, एंड इफ यू आर हेडिंग टू एन इंटरव्यू तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, एंड फॉर श्योर इट विल हेल्प यू आउट। एंड अगर और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने मिस किया एंड आपको पता हो तो डू शेयर इन कमेंट सेक्शन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यूज। तब तक के लिए बाय बाय।